Hi everyone, I'm Dr. Vili Kulsresh and in this video I will discuss the naming of organic compound containing two or दो से ज़्यादा carboxylic acid group. We all know that carboxylic acid is COOH group and this COOH group is indicating like this. It is indicated like this, like one carbon is connected with the oxygen and one carbon is connected with OH group. It is very acidic group in the organic compound, the most acidic group in the organic compound. ये हम जानते हैं. Second thing is the suffix which is used in the naming of this organic compound is oic acid. So we know that the naming of organic compound containing carboxylic acid group is done by using the suffix oic acid. For an example, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ 1, 2, 3, 4 and COOH. This is the compound you have to name. I'm just satisfying the valency of the carbon. Now look at this compound and name this. For the naming we need to have carbon chain 1, 2, 3, 4. I'm including this carboxylic acid का carbon while naming this compound, numbering this compound. So this carbon has to be included. This you have to take care. Whenever you are taking a chain, take this carbon of carboxylic acid group as a part of the chain and then number it. Okay, so this is how we have to number. Now fourth number, because there are 4 carbon atoms, so the name of this compound should start from bute. That is, word root will be bute. No double bonds are there in between, so it is ene. There is carboxylic acid, so the suffix used will be oic acid. Okay, and then we'll combine these all things to form the name butanoic acid. This is the way we have to name the compounds containing carboxylic group. This we already know. But what happens when we have more than two या टू फंक्शनल ग्रुप, तो तब हम उन्हें कैसे नेम करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे. तो शुरू करते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल. ओके, नाउ दिस टाइम आई एम हैविंग 1, 2, 3, 4, 5 COOH and this time also here also I am having one carboxylic acid group COOH. So how many carboxylic acid groups are there? We have 2 carboxylic group here. In that case, when there is a chain and you can include this carbon of the carboxylic acid as a part of chain, मतलब आप जहाँ से इस carboxylic acid से शुरू करके या फिर आप इस carboxylic acid से शुरू करके पूरी चेन को कवर करते हुए अगर आप इसको as the part of chain बना सकते हैं, तो you should make it that way. For an example, if I am starting from here 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 means there are 7 कार्बन एटम और मेरे दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हैं वो इस चेन का पार्ट है जो हम यहाँ पे भी कर रहे थे. ठीक है, तो आई हैव मेड इट द पार्ट ऑफ द चेन. नाउ हाउ द सफिक्स विल बी यूज्ड, बिकॉज देयर आर 7 कार्बन आई विल यूज इट एज which word root? Het. Okay, so there is no double bond, triple bond, it is ene. There is oic acid, one oic acid and 2 oic acid, so it becomes dioic acid. Okay, now what is this location of the oic acid? As always, we need to mention the location. In that case, number 1 and number 7. So it becomes heptane 1,7 dioic acid. So you remove this and you remove this. So it becomes heptane 1,7 dioic acid. So what you have to remember is कि अगर आपके कंपाउंड में carboxylic acid is given in such a way so that आप दोनों carboxylic acid को चेन का पार्ट बनाते हुए नंबरिंग कर सकते हो, तब तो आप इसे डाइओइक एसिड करके एंडिंग कर सकते हो. ठीक है, जस्ट सपोज कि यहाँ पे 2 नहीं 3 है. सो आई एम एडिंग वन मोर carboxylic acid group here. I am removing the name and I am adding one more carboxylic acid here. Okay, now what? Anyhow, while numbering this chain, anyhow you cannot involve third carboxylic acid. इस carboxylic acid का कार्बन
ये कार्बन जो है, दिस कार्बन यू कैन नॉट इंक्लूड इन द चेन। अगर आप इसे इंक्लूड करने चलेंगे तो आप इसको छोड़ना, आपको इसे छोड़ना पड़ेगा, और अगर आप इसे इसको इंक्लूड करेंगे तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। बट आर प्रेफरेंसेस कि सबसे लंबी चेन होनी चाहिए, तो मैं सबसे लंबी चेन लेती हूँ, क्योंकि छोड़ना तो मुझे कोई ना कोई कार्बन पड़ेगा ही। तो मैं स्टार्ट करूँगी बाई नंबरिंग इट दिस वे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका मतलब ये हेप्टेन 1 7 और 1 4 7 डाइओइक एसिड भी नहीं लिख सकती मैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये इसकी पोजीशन नहीं है, इसको तो हमने इंक्लूड किया है चैन में। तो आप क्या करेंगे, whenever there is a scene when you cannot include all the carboxylic acid group present in the compound, तो आप क्या करेंगे, किसी को भी मत करिए। जैसे कि हम अगर देंगे तो सबको देंगे, नहीं देंगे तो किसी को नहीं देंगे, काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर। So because all these three are of having same positions in the nomenclature या same position in the list of the function group, so these all will be given the same respect that way, है ना। तो अगर आपको देना है तो आप सबको दीजिए, नहीं दे सकते तो किसी को मत इंक्लूड कीजिए। एंड अगर आप किसी को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आई विल नॉट नंबर द चेन लाइक दिस, मैं ऐसे चेन का नंबर नहीं दूंगी। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, नाउ आई एम गोइंग टू लीव दिस दिस एंड दिस, तीनों को छोड़ के लॉन्गेस्ट चेन को मैं कवर करूंगी, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 5। So 1 2 3 4 5, and in this compound containing 5 carbon atom at the first position, at the third position and at the fifth position there is carboxylic acid group, ठीक है। But now we cannot write it as, we don't write it as trioic acid. How it will be named as, like, लिखिए, how many carbon atoms are there, 5, so it means it is pent, ठीक है। हम no double bond, no triple bond means it is in pentane 1 पर, 3 पर and 5 पर, 1 3 and 5 पर carboxylic acid is present, so the name of this compound will be ending as 135 tricarboxylic acid, समझे बात। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू नेम इज पेंटेन, ई हटाना पड़ेगा, डैश लगाइए, डैश लगाइए। सो दिस इज पेंटेन 135 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ दे आर नो मोर ओइक एसिड, तो आपका ये सफिक्स चेंज हो जाएगा व्हेन देयर आर मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन द कंपाउंड, ठीक है। सो फॉर द रूल इज यू हैव टू इंक्लूड इट इन द चेन। अगर पॉसिबल है सबको कर दीजिए, नहीं हो पा रहा है एंड ऑल आर ऑफ द सेम काइंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो किसी को मत करिए। एंड दिस वे वी केम टू नो कि दिस इज 135 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सिंपल। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। कुछ और है हो सकता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कोई और कंपाउंड ऐसा जो कि हमें दिक्कत कर सकता है। देयर वन एग्जांपल, लेट मी शो यू दिस। नाउ दिस टाइम आई एम टेकिंग अ कंपाउंड 1 2 3 4 5 6 7 COOH, okay, C double bond to H and CH2 C double bond OH. Now if this kind of compound is there, what difference you can see there? Now they are not same kind of, this is correct, this carboxylic acid and this carboxylic acid, you can see there कि अगर आप चेन बनाने वाले हैं तो आप इसको या तो इंक्लूड कीजिए, इट इज एज अ पार्ट ऑफ चेन, या फिर आप ऐसे चेन बनाइए। बट ऑब्वियसली दिस इज द बिगेस्ट वन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं इसको तो बनाऊंगी लॉन्ग चेन, ठीक है, अगर मुझे चॉइस करनी है तो। बट प्रॉब्लम इज, जैसे मैंने कहा था कि या तो किसी को भी मत दीजिए पोजीशन या फिर सबको दीजिए, तो क्या हमें यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा। बट इफ आई डू दैट, थर्ड पोजीशन 1 2 3 4 5 6, थर्ड पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है, दिस इज नॉट COOH, दिस इज CH2COH, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड में एक फ्लॉ आ गया। नाउ वी कैन स्किप इट, तो हमें तो कोई बहाना चाहिए था कि हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ सके, तो हमें वो बहाना मिल चुका है। दैट इज नाउ वी आर अलाउड टू स्किप दिस एंड वी आर अलाउड टू मेक दिस इन द सेम वे। चेन वैसे ही बनाइए जैसे आपने पहले बनाई थी, कंसिडरिंग दिस एज अ पार्ट ऑफ द चेन। अब हमें इसके लिए इन दोनों को सेक्रीफाइस कराने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने गलती कर दी। क्या गलती कर दी, ये मिथाइल ग्रुप के साथ आया, CH2 ग्रुप के साथ आया, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, सेम वे वी विल बी नंबरिंग द चेन, यानी कि 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So it is octane now. तो इसको तो हमने लिख दिया ऑक्ट प्लस इन प्लस, अगर दो थे एंड दे वर इंक्लूडेड इन द चेन तो हम उसे क्या नेम दे रहे थे, ओइक एसिड, ओइक एसिड. एंड वन मोर थिंग वी वर डूइंग, द पोजीशन वी हैव टू मेंशन ना. तो ऑक्टेन 1 8 डाइओइक एसिड ना, डाइओइक एसिड, दिस वी हैव टू नेम. तो ऑक्टेन 1 8 डाइओइक एसिड. नाउ दिस इज लेफ्ट आउट, ये हमने मेंशन नहीं किया है. सो दिस ऑल्सो वी हैव टू मेंशन हियर विद द पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप इन दिस चेन. सो व्हाट इज द पोजीशन 4. ओके, दिस ग्रुप इज कॉल्ड carboxy methyl. What is this called? Carboxy methyl. This is meant for the carboxy, okay, and this is for carboxy and this is methyl group, because we have only one carbon in the atom other than carboxy group. So this is carboxy methyl group. Methyl, it is group methyl, so it is alkyl na. Now it is this alkyl group having a COH compound group attached to it is connected with the fourth carbon atom. So I name it as 4 carboxy methyl octane 1 8 dioic acid. This way you are going to name this compound. So what is the name of this compound? 4 carboxy methyl octane 1 8 dioic acid. I hope it is clear to you that how to name the compounds containing 2 or more carboxylic acid group. First thing was, it was simple, dioic acid लगा दीजिए. If there are two, दोनों ओइक एसिड को कंसीडर कीजिए एंड देन नंबर द चेन. अगर दो से ज़्यादा है तो या तो सबको कर सकते हो तो सबको करो, एंड ऑब्वियसली सब लोग कंसीडर नहीं हो सकते, बिकॉज ब्रांच में अगर आप जाएंगे तो आपको लौट के आने के लिए अलाउड नहीं है. तो अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि आप दोनों को कंसीडर नहीं, तीनों को कंसीडर नहीं कर सकते या 4 हो सपोज, ऐसा कुछ हो, कैन आई टेक दिस 1 2 3 4. मैं ऐसे यहाँ से COH लिख लेती हूँ, यहाँ COH लिख लेती हूँ और यहाँ भी COH लिख लेती हूँ. तो मेरे लिए कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं चारों कार्बन को, जो कि एक पार्ट है COH का, इंक्लूड कर लूँ इन द चेन. चेन में नहीं कर पाऊँगी. इधर आई गो दिस वे, अगर मैं यहाँ जाऊँगी तो मुझे लौटना अलाउड ही नहीं, क्योंकि चेन का हमें क्या पकड़ना है, वी हैव टू पिक द चेन सच अ वे सो दैट हमें एक सिरा पकड़ में आएगा और दूसरा सिरा. तो दिस वे 1 2 3 4 5 6 7 मैं लंबी से लंबी चेन कलेक्ट करूँगी, इनको मैं क्या करूँगी, छोड़ दूँगी. तो ये गड़बड़ हो गई, मतलब आई कैन नॉट लीव दैट. तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं पकड़ में आ रहे हैं और आप कैसे भी उनको सबको नहीं ले पा रहे हैं तो सबको छोड़ दीजिए. जैसे होता है ना कि भाई कोई गेस्ट आया है, हमारे पास सबके लिए गिफ्ट नहीं है, तो ठीक है, तो किसी को मत दो. सबको करो तो सेम करो, वरना मत करो. तो द सेम थिंग इज हैपनिंग विद देम, कि सबको करो तो सेम करो, नहीं तो मत करो. तो हम इन सबको भी पोजीशन नहीं देंगे. वी विल नंबर द चेन बाय कंसीडरिंग दीज एज अ ग्रुप कनेक्टेड टू द मेन चेन. तो उस केस में मैंने क्या कहा था, 3 4 5, मैं इसे पेंटेन लूँगी रादर देन हेप्टेन. ठीक है, तो अगर आप कंक्लूड कर सकते हैं इट्स फाइन, डाइओइक एसिड लिखिए. अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी को मत कीजिए. अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती हैं दैट आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बट आपको एक बहाना मिल जाता है कि दिस इज आर नॉट इंक्लूडिंग बिकॉज इट इज़ नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली विद द चेन. फाइन, तो यू हैव गॉटन फ्लॉ इन द कनेक्शन. तो आप इसे छोड़ दीजिए जिसमें गड़बड़ निकल गई है, बाकी सबको एक पार्ट बना दीजिए चेन का, एंड देन दिस विल बी नेम्ड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फिगरेशन, दिस नेमिंग पैटर्न. कार्बोक्सी मिथाइल, तो कार्बोक्सी तो कॉमन रहेगा बिकॉज COH विल बी देयर, और दिस ग्रुप, दिस CH2 विल बी डिपेंडिंग ऑन, सपोज इट वुड बी CH2 की जगह C2H5 होता है, तो मैं ऐसे लिख देती कार्बोक्सी इथाइल. I would have written that carboxymethyl. So this way you are going to name the compound. I hope this video will helpful for you to understand how to name them. And this is the very important video just because most of the students get it difficult for them. तो ये वाले जो चीज़ें हैं ये they used to forget. So please take care that you are doing it very properly and do lots of questions. अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो you can send this in the comment box so that I can answer your question and I can help you. If you like this video, please subscribe my channel, like the video and share it. Thank you very much.